Good morning, students. Dear students, let's continue the chapter The Thief's Story, in which you have studied about a person who is habitual of stealing and cheating the persons, and another person named Anil. I will not tell you the name of first person. You will find out it yourself by the story. I will just address by the first person. And the second person, Anil, whom he planned to steal. What he had done, he has stolen a bundle of notes which he had earned previous day and has left the house. Now, what he is feeling and what he is doing. Let's study. I find myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chill. It was early November and light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. The person who is narrating the story, you can see in the picture, he has stolen the money. He went to the railway station but he left the train. He returned back to the market and sat on a bench. वो प्लान करता है कि वो ट्रेन से सिटी छोड़ देगा, लेकिन वो सिटी छोड़कर नहीं जाता है. स्टेशन से ट्रेन छूट जाती है उसकी और वो वापस आकर मार्केट में बेंच पर बैठा हुआ है. Now he is describing that this was the November night and definitely it was chill, so he was feeling discomfort. अब वो आराम महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ठंड का मौसम था, बारिश की रात थी और बारिश में वो भीग गया था. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो घंटाघर के नीचे बैठ जाता है. Clock show midnight. It was the time of midnight. I felt for the notes. They were damp from the train. अब जो नोट का बंडल उसके पास था वो भी थोड़ा गीला लगने लगा था उसको. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. He thought that in morning, Anil definitely would give me some rupees, but now I have all the money. I couldn't cook his meal, ran to the bazaar, learned to write whole sentences anymore. अब वो सोचता है कि अब मैं सारे पैसे चुरा चुका हूँ तो मैं अनिल के पास नहीं जाऊँगा और नहीं जाऊँगा तो मैं उसका खाना भी नहीं बनाऊँगा, उसके लिए बाज़ार से सामान भी नहीं लाऊँगा, सामान में से जो पैसे बचा लेता था और वो कभी नहीं पूछता था वो भी नहीं कर पाऊँगा, और वो मुझे पढ़ना सिखा रहा था वो भी अब नहीं हो पाएगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी के एक्साइटमेंट में मैं इन सब बातों को भूल गया कि मैं कितने अच्छे से रह रहा था. I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be really a big man, a clever and respected man was something else. He thought that after getting study, after getting knowledge, after being literate, he can earn more fame, more money, and that was more important. उसको लगता है कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता तो वो और सम्मान प्राप्त करता समाज में और ज़्यादा पैसे भी कमाता. आई शुड गो बैक टू अनिल. अब वो प्लान करता है कि मुझे वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना ही होगा. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. किसी चीज़ को चुराना आसान होता है लेकिन बिना किसी को पता चले उसको लौटाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो नर्वस था. I opened the door, stood in the doorway, clouded midnight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and having a hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है, देखता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ है. नोटों के बंडल को वापस उसके पीलो के नीचे रख देता है. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये पर्सन जागता है तो अनिल उठ चुका था और चाय भी बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. वो नरेटर को एक 50 रुपये का नोट देता है. अब राइटर को लगता है कि मैं शायद पकड़ा गया हूँ और मेरी चोरी पकड़ने का पनिशमेंट अब मुझको मिलेगा. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. अनिल कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए. नाउ यू विल बी पेड. अब मैं तुम्हें मंथली सैलरी दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज मीन्स आई वॉज फीलिंग हैप्पी. आई टुक द नोट. आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैंने देखा कि नोट अभी भी भीगा हुआ है. वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज टूडे. आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, अनिल ऐसा नरेटर को कहता है. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शो एनीथिंग. अब नोट भीगा हुआ था तो डेफिनेटली अनिल समझ चुका था कि रात मैंने चोरी करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा. ना उसके होठों से उसकी आंखों से किसी भी बात को उसने जाहिर किया. मैं मुस्कुराया अनिल पर
क्योंकि अनिल बहुत अच्छे तरह से मुझसे व्यवहार कर रहा था। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और जब आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो मुस्कुराहट आपके होठों पर अपने आप ही आ जाती है, आपको मुस्कुराने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी से आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे क्योंकि एक इंस्पिरेटिव स्टोरी है। और आज के टाइम में आप जानते हैं कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो लोग उसको एक चांस सुधरने का नहीं देते हैं। इवन उसकी इतनी पिटाई होती है कि वो खुद ही सुधरना नहीं चाहता, वो खुद ही मेंटली एम्बैरेस हो जाता है। लेकिन अनिल ने फिर भी उसको एक चांस दिया सुधरने का और उसको सैलरी भी दी, उसको पैसे भी दिए, क्योंकि मनी की उसकी नीड थी तो वो उसने उसकी उस ज़रूरत को भी पूरा किया, उसको खाना भी दिया, सब कुछ दिया। स्टूडेंट्स, चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद हम इसके वर्क को करेंगे। ओके।